The name of the chapter is Working of Institutions. In ordinary language, whenever we heard the word institutions, we think it is a building. It is a building made up of bricks, cement, and sand. All the institutions, they have one office. But in political science, in political view, overall, we think institutions means the people, the personnel, those who are working in an office. Either he is a sweeper or secretary or chief secretary. They all are known as institutions. Prime Minister is itself an institution. President is an institution. MLA is an institution. MP, those who are the member of parliament, is an institution. But in ordinary language, a betel shop, those who are selling the betel nut, जो पान बेच रहा है, एक पान दुकान वाला, वो आदमी अपने पान दुकान में काम करता है, वो अपने पान दुकान का पर्सनल है, वो काम करने वाला है, अपने पान दुकान में काम कर रहा है, तो उसका इंस्टीट्यूशंस वो सुबह जाके 6 बजे खोल लेता है, वो पान का दुकान उसके लिए इंस्टीट्यूशंस है. बट पूरे देश को चलाने के लिए, टू रन ओवरऑल द कंट्री, द few hands, few personnels, those who are thinking about the welfare of the citizens of the country, that all personnels, either he is in a lower post or in a higher post, they are working in institutions, and there itself is no institutions, and they have some working period. What are they doing for us? So in this chapter it is already cleared. We have already read one example, that government in 1990, when the Janata Dal government, Vishwanath Pratap Singh, VP Singh was the Prime Minister of India. At that time, he had declared that I will pass the Mandal Commission. And Mandal Commission was a report, ordinary report, written by VP Mandal. And that VP Mandal has written that 27% reservation should have in central government job for those who are economically, socially and educationally backward. It was a new kind of class which was formed in 1990. Before that, only one Dalit, Harijan, scheduled caste and scheduled tribe. It is very old. It has been going since the beginning, 1947. But on a sudden, 1990, a new class arise, new class formed, that is socially, economically backward class, SEBC. And that Mandal Commission's report has been sent by Prime Minister to the Parliament. After Parliament, it has been stamped by President. And at last, Supreme Court had declared there is some error. Please, Supreme Court had ordered that there is some error. We are ready to pass this Mandal Commission. But actually those who are belongs to creamy layer, those scheduled caste, those who are rich, they have vehicles, they have buildings, they are earning more and more. How will he get the chance reservation in job? It would be injustice for the scheduled tribe and scheduled caste. So in 1993, Supreme Court has already passed and one amendment has passed कि नहीं ठीक है, जो क्रीमी लेयर में आएंगे उनको ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगा और ये मंडल कमीशन चल रहा है. तो इसमें डिसीजन लेने वाले कौन हुए? 2 आदमी हुए. एक तो हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो टेम्पररी होते हैं, 5 years के लिए होते हैं. We are sending them. We are just after election, they are the getting the post of political executive. मुखिया जी, सरपंच साहब, पंचायत समिति सदस्य and ward member, prime minister, chief minister, they all are political executive. They are political executive. Why? Because we the people, we have those who have completed 18 years old and we are enrolled in voters card. So we the people have sent them, make them, हम लोग इनको नौकरी दिए, हम जनता इनको नौकरी दिए प्रधानमंत्री को. ये कोई आईएएस और आईपीएस का कंपटीशन देके नहीं आए, ये इलेक्शन के बाद आए हैं.
तो इसको कहा जाता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये डिसीजन लेगा। क्यों? अब देखिए डिसीजन लेगा कौन। अब इसके नीचे और एक क्या है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और एक कोई बताइए? दो, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। झाड़ू लगाने वाला से लेके मैनेजर तक, सेक्रेटरी तक, सचिव तक, वो होगा परमानेंट एग्जीक्यूटिव। दे हैव सम एजुकेशनल क्वालिटीज, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि दोज हु आर एमपी और एमएलए और प्राइम मिनिस्टर विल हैव टू, आई थिंक, एजुकेटेड, आई थिंक नो। अंगूठा छाप भी हो सकते हैं। ये इतना बड़ा देश को चलाने के लिए अकेला डिसीजन नहीं लेंगे, देश बर्बाद हो जाएगा। उसको मदद लेना होगा परमानेंट एग्जीक्यूटिव का, जो 60 साल के उम्र होने के बाद रिटायर होते हैं। प्रधानमंत्री रिटायर हो जाएंगे 5 साल के बाद, उनका जो सचिव है वो बेचारा मुंह तकता रहेगा। अब दूसरा प्रधानमंत्री आएगा, फिर भी वो सचिव रहेगा। ज्यादा से ज्यादा उसका ट्रांसफर हो सकता है, इस स्टेट से उस स्टेट, इस स्टेट से उस स्टेट ट्रांसफर होता रहेगा। तो इस चैप्टर में ये दोनों को इंस्टीट्यूशंस कहा गया। बोथ आर इंपॉर्टेंट बैकबोन। बैकबोन, एक भी गायब हो जाए इसमें से लड़खड़ा जाएगा देश, शासन व्यवस्था लड़खड़ा जाएगा। दोनों की जरूरत है। और उसके बाद एक सबसे बड़ा पिलर है पार्लियामेंट। पिलर, टू बिल्ड अ हाउस वी नीड सम पिलर्स to make it strong. Like that, parliament is the important decision makers. Why? Because parliament has 3 elements. Which one? Upper house, lower house, and one president. They all are the part of parliament. इसके अलावा भी पार्लियामेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर का हेड प्राइम मिनिस्टर हो गया, गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर हो गया। तो प्राइम मिनिस्टर को तो 3 पावर एकदम ऑलरेडी मिला हुआ है। वो बनाया है कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्री वो बनाते हैं चुन के, तो ऑलरेडी वो मंत्री के हेड हो गए प्राइम मिनिस्टर। उनके पास 60 मंत्री बैठेगा, वो 60 मंत्री को हम लोग 60 या 80, उसको हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। ज्यादा वैल्यू है, उनका वैल्यू ज्यादा है। और उसके बाद स्टेट मिनिस्टर होगा, राज्य मंत्री, मुंह ताकेगा कब हमको मोदी जी बुलाएंगे, वहां प्रधानमंत्री हमको कब इन्वाइटेशन देंगे, तब जाएगा वो। दे हैव नो पावर टू एंटर इनटू द पार्लियामेंट अंटिल द गवर्नमेंट विल नॉट कॉल। बट कैबिनेट मिनिस्टर्स, मैं कम इन सर, प्रधानमंत्री के ऑफिस में जाएगा, वो भगाएंगे नहीं, बोले आओ आओ। ये 80 डिसीजन मेकर है, ये 60 से लेकर 80। और एक होता है इंडिपेंडेंट मिनिस्टर, स्वतंत्र प्रभार उसको दिया गया। मान लीजिए रेल राज्य मंत्री बना दिया गया उसको, या कपड़ा मंत्री बनाया गया, कोयला मंत्री बनाया गया। ये सब हंसने की बात नहीं है। हम लोग जब सुनते हैं कपड़ा मंत्री, कोयला मंत्री, तो हम लोग को हंसी आता है, भाई ये कौन सा पोस्ट है, भाई ये कौन सा पोस्ट है कोयला मंत्री। तो दे विल कैग, उसका कोयला का कोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया सुने होंगे, कोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कोयला का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ऑफिस है, जो माइन से कोयला निकलता है, उसका एक मंत्री होना जरूरी है, नहीं तो घोटाला करेगा सब। तो वर्किंग इंस्टीट्यूशन में हम लोग का पार्लियामेंट हैज इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज पार्लियामेंट हैज 3 ऑर्गन्स। सो पार्लियामेंट इज एन इंस्टीट्यूशंस, प्राइम मिनिस्टर इज एन इंस्टीट्यूशंस, प्रेसिडेंट इज एन इंस्टीट्यूशंस, all those who are personnel, those who works in office for the development of country, they all are institutions. So what are their function? In this chapter we are studying what are their functions, what are their working, how do they work for the country. What does prime minister do? He works as a mediator for प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच का कड़ी प्रधानमंत्री है। प्रेसिडेंट तो उठ के आएगा नहीं पार्लियामेंट में, राष्ट्रपति तो उठ के आएंगे नहीं, तो उनके पास फाइल भेजा जाता है। एंड लोकसभा इज नोन एज लोअर हाउस, दे आर पावरफुल देन राज्यसभा बिकॉज लोकसभा हैज मोर मेंबर्स and Lok Sabha can pass the bill of money bill. Rajya Sabha cannot pass the monetary bill, but Lok Sabha have one power that he can pass the money bill. That's why Lok Sabha is more powerful than Rajya Sabha. In India,
MP is selected for 5 years in Lok Sabha, but in Rajya Sabha, member is selected for 6 years. It's a clear? राज्यसभा में 6 साल के लिए चुना जाता है सदस्य को और लोकसभा में 5 साल के लिए। लेकिन ये लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, 5 साल के बाद ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो 60 साल के उम्र के बाद रिटायर होंगे। इसलिए याद रखिएगा, देश को चलाने के लिए 2 पिलर काम करता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो हम लोग नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। नहीं पढ़े हम लोग, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी नेक्स्ट पेज में हम लोग आएंगे, इसमें पूरा क्लियर लाल रंग से लिखा होगा। देखिए, पलटिएगा घर में तो मिलेगा। आज वही टॉपिक पढ़ाने ही वाले थे, तब तक सर आ गए।